Hello, dear friend. Hope you are doing well. I'm also good. Today, in this video, we will discuss something about the lecture. What we will discuss in this video. So, if you are the aspirant of JEE and not only JEE, if you are preparing for any entrance exam where the mathematics part is very important, then this video will be helpful for you. And firstly, I'm going to clarify for which standard student can watch my video and they can get the benefit. So if you are the student of uh, 9th to 12th, then this video will be helpful for you, the first thing. And second thing is, if you are the student of IIT JEE, right? If you are the student of IIT JEE, then you can watch the video. I will discuss all the things, all the required and important things in this video. And the third is, if you are preparing for CUET entrance exam, UG and PG, both, right? The fourth is, if you are preparing for IIT JAM, then this video is also helpful for you. And if you are preparing for uh, uh, like after the IIT JAM or after the masters, if you are preparing for GATE and NET and mathematics, whatever I am covering that is important for you, then you can also watch. Okay, so GATE and CSIR, right? CSIR, right? Okay, so these thing I have discussed. Okay, now what we will discuss in the whole video. Firstly, my focus will be on the concept of limit, right? The concept of limit, and after that, after understanding the limit, we will moving continuity, right? Continuity, then differentiability, differentiability, and after that, we will move maxima, minima, right? Then monotonic increasing, monotonic decreasing, right? And with examples, right? So when we will cover one topic like limit, then we will discuss the example also. Same for continuity as well, same for differentiability and everything. So that these content we will discuss in this video and upcoming videos, right? So I hope you are aware about the function, right? Function, then the properties of function, one function, onto function, like range, domain, codomain. I hope you aware. If you are not aware about these kind of terms, then you can tell me so that I'll provide you a separate video also in this in these topics on these topics. Okay, so just we will before starting the limit, we are going to understand some basic functions like some functions, right? Some functions. I know you have idea about the functions, but just for revise, we are going to understand. Okay, so and firstly, I'm going to clarify my video will be both Hindi language and English language. तो हम यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में बात करेंगे. Okay, if you have any query regarding the language, then you can drop me comment. Okay, आप मुझसे बता सकते हैं कि अगर आपको कोई लैंग्वेज related issue है. Okay, so firstly, what constant function? Constant function
What is constant function? Constant function means, suppose if I am defining a function f defined from a to b, where the definition of the function is fx is equal to c, where c is constant real number. Okay, so here my domain is what? Domain is a. And what is the range? Range is singleton c, and the codomain is b. So that is very easy example. The second is identity function. Identity function. Identity function means, suppose I am defining a function from a to b, where the definition is fx is equal to x. It means if you will put any value like a, that the function will give you a, where a belongs to capital A. Okay, so it means the domain is what? The domain is also a, and the range is also a, right? Okay. Now, what is the next part? The next, the next function, bounded function, right? Bounded function. Bounded function means, bounded function. Suppose I am defining a function from a to b, where the function modulus value of the function is less than equal to n, where n is any positive number. Okay, so this is the definition of function. Like, suppose, for example, constant function fx is equal to c. So what I can say, fx is equal to c. So this is also less than equal to any positive number n. Yes. Okay. Now the fourth example, and in case of unbounded function, where the function is not bounded, then we can say the function is unbounded. अगर function bounded नहीं है तो हम कहेंगे function unbounded. Like जैसे एक example of unbounded function, the example fx is equal to x, where f defined from set of real number to set of real number. So this is the unbounded function, right? So this is the unbounded functions. Okay, so just we are taking only the idea of the functions, basic idea of functions. Like, I hope you are aware about the this kind of functions, like fx is equal to x square, x cube, x to the power 4, and you have basic idea about the graphs also. बिकॉज फंक्शन के साथ फंक्शन का अगर आप ग्राफ जानते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों का आइडिया लगा सकते हैं, और ये हमें बहुत हेल्प भी करता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये तो हो गई बेसिक जानकारी फंक्शंस की। लाइक रेसिप्रोकल फंक्शन होता है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, दिस इज द रेसिप्रोकल फंक्शन। ओके, द रेसिप्रोकल फंक्शन, द ग्राफ इज looking like this. Okay, this is x-axis, this is y-axis. Okay, so this is the basic idea of functions. और अगर हमें और फंक्शंस के बारे में बात करना हो तो हम बहुत सारे फंक्शंस के बारे में बात कर सकते हैं, लाइक मॉड्यूलस फंक्शंस, लाइक मॉड्यूलस फंक्शंस, मॉड्यूलस फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, logarithmic function. This is the natural log. Okay, so I hope you have idea about the functions. If you are not, अगर आपको नहीं आइडिया है फंक्शन का तो आप मुझे बता सकते हो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी बहुत सारे होते हैं, लाइक साइन एक्स, cos x, tan x, एंड जब हम साइन में जाएंगे तो हम जब ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली जाएंगे
तब हम बात करेंगे डिटेल्स में साइन कॉस टेन के बारे में, और भी इसके काफ़ी सारे एक्सटेंशन के बारे में, राइट। यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की भी हम बात करते हैं, जो कि हमारा जी आई एफ होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जी आई एफ, राइट। लीस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में भी हम बात करते हैं, राइट। इन सबकी डेफिनेशन आई होप आपको पता हो। अगर आपको नहीं पता है तो आप पहले उसके बारे में देख सकते हैं, या आप कमेंट कर सकते हैं, सो दैट मैं आपको इस पे भी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। देन उसके बाद अगर आप लिमिट पे जाते हैं, क्योंकि हम इन फंक्शंस की लिमिट के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, इसी के साथ में हमें पढ़ना पड़ता है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शन फंक्शन, राइट। बहुत सारे फंक्शंस की हम बात कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक आइडिया फंक्शंस का, इनकी डोमेन रेंज हम सब की बात कर सकते हैं, राइट। तो अभी हम आते हैं हमारा मेन जो कोर टॉपिक है, जो है हमारा लिमिट, राइट। तो लिमिट होता क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना है। लिमिट मीन्स व्हाट? लिमिट मीन्स, लिमिट इट मीन्स आपकी किसी चीज की सीमा, राइट। जैसे अगर मैं बहुत ज्यादा आम भाषा में कहूँ, बहुत ज्यादा आम भाषा में कहूँ, अगर मैं एक पत्थर लेता हूँ और मेरा टारगेट ये है, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, राइट। मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और मेरे हाथ में ये पत्थर है, ठीक है। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये पत्थर, मैं यहाँ से, मेरा डिस्टेंस लगभग लगभग 150 मीटर है, राइट। 150 मीटर ये प्लेस है, या ये बॉक्स है, एक तरीके से मान लीजिए ये एक बॉक्स रखा हुआ है, और इस बॉक्स के पास मुझे इस पत्थर को फेंकना है। तो मे बी जब मैं इस पत्थर को फेंकूं, तो ये पत्थर कहीं ना कहीं इस तरह से, या जैसे भी मैं फेंकना चाहूँ, मैंने इस तरह से इस पत्थर को फेंका, और जस्ट ये पत्थर जाके हमारे इस बॉक्स से नहीं टकराया, बट बहुत ज्यादा नजदीक गिरा है। अब हम नहीं जानते वो कितना नजदीक है, बट काफी नजदीक है। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो पत्थर था जो हमने फेंका था, ये ये जो पत्थर था जो हमने इस बॉक्स की ओर फेंका था, ये बॉक्स की तरफ गया, बट बॉक्स से टकराया नहीं, या बॉक्स को टच नहीं किया, लेकिन बहुत ज़्यादा नज़दीक है ये बॉक्स के। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो पत्थर है, ये काफ़ी हद तक इस बॉक्स के पास था, यानी ये पत्थर बॉक्स के नज़दीक में, या कह सकते हैं बॉक्स को अप्रोच कर रहा है, पहुंच नहीं रहा है, ये कंफर्म है, नहीं पहुंच रहा है, बट अप्रोच कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल समझने के लिए हम कह सकते हैं कि जैसे अगर मैं अगर मैं क्या क्या कहने की कोशिश करूं, कि अगर मैं एक जगह पे खड़ा हुआ हूं, और यूं कहें कि समुद्र के पास खड़ा हुआ हूं, ठीक है। समुद्र के किनारे पे खड़ा हुआ हूं, समुद्र की लहरें कुछ आ रही हैं, लहरें आ रही हैं, और मैं एक चीज देख रहा हूँ कि समुद्र की लहरें बहुत तेजी से आ रही हैं, बट जब तक वो मेरे पास आ रही हैं, तो वो खत्म हो जा रही हैं, मतलब लहरें जो है बंद हो जा रही हैं, मुझ तक उन लहरों का कोई असर नहीं हो रहा है, राइट। कोई असर नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, कि जो लहरें हैं वो मुझ तक अप्रोच कर रही हैं, लेकिन पहुंच नहीं रही हैं। तो इसी तरह से कंसेप्ट होता है लिमिट, जो कि हम फंक्शंस में पढ़ते हैं बेसिकली, कि हम फंक्शंस में चेक करते हैं कि फंक्शन के पास लिमिट है या नहीं है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किसी भी चीज को अप्रोच करना, राइट। मेन कीवर्ड आप याद रखिए, अप्रोच करना, राइट। यानी कि ये वेव जो है अप्रोच कर रही हैं मुझ तक, बट टच नहीं कर रही हैं मुझे। सेम ये पत्थर अप्रोच कर रहा है इस बॉक्स को, लेकिन पहुंच नहीं रहा है उस तक, या टच नहीं कर रहा है उसको। अब मैं सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं, एक एग्जांपल लेता हूं, बहुत ज़्यादा बेसिक एग्जांपल लेता हूं। जैसे सपोज एक फंक्शन डिफाइन किया हमने, एफ एक्स इज इक्वल टू 2, where f defined from set of real number to real number, right? See, what is the graph of the function? This is 2, this is 1, this is 2.
So this is the straight line. This is the graph of fx is equal to 2. This is the graph of 2. It means for any value of x, this is 0, this is 1, this is x is equal to 2, this is x is equal to 3. It means हर एक पॉइंट पर फंक्शन जो है टू वैल्यू ले रहा है, राइट। तो हम कब कहते हैं कि फंक्शन के पास लिमिट है, फंक्शन के पास लिमिट है। लिमिट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो एक पॉइंट का कॉन्सेप्ट है। पॉइंट का मीन्स ये हमारा डोमेन है, राइट। डोमेन में वो सर्विस होते हैं जो एज अ इनपुट हम काम कराते हैं, मतलब जो भी हम जिसके करस्पॉन्डिंग हम वैल्यूज लेते हैं वो सारे पॉइंट्स होते हैं। तो वो हमारा यहाँ पे इस केस में रियल नंबर है, और रियल लाइन में आपको पता ही है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच के सारे नंबर्स आपके रियल लाइन में आते हैं। तो ये हमारे डोमेन में है। तो हम क्या करेंगे, जब हम लिमिट की बात करेंगे स्पेशली, तो हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करेंगे। कोई पॉइंट होगा x इज इक्वल टू ए, उस पॉइंट पर हम लिमिट की बात करेंगे। जैसे इस केस में हम इस एग्जांपल में हम क्या कर रहे हैं, हम इस पत्थर को फेंक रहे हैं। तो हम इस पत्थर को फेंकने के बाद हम कहाँ पे किसके करस्पॉन्डिंग ये बोल रहे थे कि ये हमारा पत्थर अप्रोच कर रहा है एक बॉक्स को। तो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट वाली चीज थी ना वो बॉक्स थी। इस केस में जो वेव, जब हम वेव से समझ रहे थे कि ये जो वेव है ये मेरे पास पहुंच रही है बट टच नहीं कर रही है। तो यहाँ पे जो एक व्यक्ति खड़ा है वो एक पॉइंट का काम कर रहा है। सेम वे हमें किसी के करस्पॉन्डिंग तो बोलना पड़ेगा ना कि हमारा जो फंक्शन है या कोई ऑब्जेक्ट है वो अप्रोच कर रहा है उसे या नहीं कर रहा है। तो अगर जैसे मैं इस एग्जांपल में ही बात करूँ x इज इक्वल टू 2, इस केस में अगर मैं बोलूँ कि x इज इक्वल टू 2, मान लो लेट सपोज लेट x इज इक्वल टू 2, ये हमारा 2 है यहाँ पे, राइट। इसमें हमें एक चीज पता है कि हमारा जो फंक्शन है वो एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो एफ एक्स इक्वल टू 2 पे 2 ले रहा है, राइट। चलो 3 पे ले लेते हैं, बिकॉज 2 पे तो 2 ही ले रहा है, तो 3 पे लेना इन जनरल वाला काम हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू 3 हमने ले लिया, ये है पॉइंट हमारा एक्स इज इक्वल टू 3। यहाँ पे वैल्यू फंक्शन ने क्या वैल्यू ली है, फंक्शन ने वैल्यू ली है 2। अब हम कह रहे हैं कि हम एक फंक्शन को कब कहते हैं कि फंक्शन के पास लिमिट है। तो उसके लिए हमें पॉइंट चाहिए, तो हमने वो पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 3 ले लिया। अब हम कह रहे हैं कि हमारा फंक्शन है एफ एक्स, उसके पास एक्स इज इक्वल टू 3 पर लिमिट एग्जिस्ट करती है या लिमिट रखता है फंक्शन। ओके, इट मीन्स यहाँ पे जहाँ पे फंक्शन 2 वैल्यू ले रहा है, हम क्या करते हैं, एक, क्योंकि हम 2D में बात कर रहे हैं, हम सपोज ये हमारा रियल लाइन है, ये हमारा पॉइंट 3 है। तो अगर मुझे, मैं सपोज करो यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, अब अगर मुझे अप्रोच करना है या मुझे कहीं जाना है किसी तरफ, तो हम रियल लाइन में कहाँ जा सकते हैं, या तो लेफ्ट जा सकते हैं, यानी कि मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ तो या तो मैं इस तरफ जा सकता हूँ, ये वाला पार्ट, और या फिर राइट साइड में इस तरफ जा सकता हूँ। ये पर दो ही रास्ते मेरे पास हैं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन को कब कहते हैं कि इसके पास लिमिट है, हम कहते हैं कि जो भी फंक्शन में एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 3, फंक्शन जो भी वैल्यू 3 पे ले रहा है उसके करस्पॉन्ड हम एक नेबरहुड बनाते हैं, नेबरहुड बनाते हैं, राइट। नेबरहुड बनाते हैं, एप्सिलॉन नेबरहुड। तो ये नेबरहुड यहाँ ना बन के, चूंकि हमने वैल्यू यहाँ पे अटेन की है वाई एक्सिस पे, राइट। बेसिकली दिस इज 3, सॉरी दिस इज 2, एफ एक्स इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 2। तो अगर हम एप्सिलॉन नेबरहुड बनाएंगे तो वो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। आई होप यू आर अवेयर अबाउट द एप्सिलॉन नेबरहुड। सपोज अगर हमने एक एप्सिलॉन नेबरहुड बनाया है एट एफ एक्स इज इक्वल टू 2, तो वो कैसा होता है, सपोज ये एप्सिलॉन नेबरहुड है। इट मीन्स फंक्शन हम कहाँ से ले रहे हैं, फंक्शन बिलोंग कर रहा है 2 माइनस एप्सिलॉन टू 2 प्लस एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन है, इतने डिस्टेंस एप्सिलॉन डिस्टेंस है इसका, तो ये पॉइंट कितना होगा 2 माइनस एप्सिलॉन, और ये भी सेम डिस्टेंस है एप्सिलॉन, तो 2 प्लस एप्सिलॉन। तो
कहने का मतलब अगर हम ऐसा एक नेबरहुड बना लें इसके बीच में जो कि 2 + एप्सिलॉन 2 - एप्सिलॉन टाइप का एक इंटरवल ही दिखे और हम कहें कि ये ट्रू है फॉर ऑल पॉजिटिव एप्सिलॉन। अगर ऐसा हम करते हैं तो जिस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं लिमिट की उसके करस्पॉन्ड क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, देन अगर ऐसा हो रहा है तो हम ये तीन थ्री पे बात कर रहे हैं तो इस थ्री के अराउंड देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव डेल्टा सच दैट, जो कि क्या होना चाहिए, जो थ्री पॉइंट है जिसपे हम चेक कर रहे हैं उसके अराउंड एक डेल्टा नेबरहुड का डेल्टा नेबरहुड एक्सिस्ट करना चाहिए अराउंड थ्री। इट मीन्स ऐसा एक 3 - डेल्टा to 3 + डेल्टा जिससे हर एक एक्स हम ले सकें। हो सकता है ये डेफिनेशन थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो बट ये बहुत इजी है। हम एक दो एग्जाम्पल लास्ट तक हम इसको बिल्कुल क्लियर करके ही जाएंगे क्योंकि ये एक डेफिनेशन है जो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन होती है। मैंने आपको देखो बहुत इजी वे में पहले ही बता दिया है कि दो एग्जाम्पल आपको मैंने दिए थे, राइट। बट इस इतना काफ़ी नहीं है मैथमेटिकली हमें लिमिट को लिखना। तो मैथमेटिकली हमें लिमिट को लिखने के लिए हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का प्रयोग करते हैं और ये आपको सीखनी ही पड़ेगी बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड for the deep concept of limit. For understanding limit, you have to understand about the epsilon delta definition. So मैं यहाँ पे प्रॉपर इसका डेफिनेशन लिखता हूँ पहले कि क्या इसका प्रॉपर डेफिनेशन है, राइट। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन क्या कहती है, मैंने अभी एक एग्जांपल से आपको बताया, हो सकता है आपको ये नहीं समझ आया हो बट ये क्या कहता है, ये कहता है लेट अ फंक्शन, बेसिकली रियल फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए रियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x is equal to a such that, इट मीन्स अगर एक फंक्शन x is equal to a पर सॉरी this is the limit, we are not discussing now continuity, we are discussing the limit, okay। a function a let of real function is has, ये लिखना पड़ेगा हमें, real function has limit at x is equal to a such that fx minus L, fx minus L. So here we are checking at x is equal to a, fa minus L has a limit L। हमें यहाँ लिखना चाहिए कि let a real function has a limit L at x is equal to a such that fx minus L less than epsilon whenever modulus of x minus a less than डेल्टा। तो ये यहाँ पे एप्सिलॉन और डेल्टा पॉजिटिव नंबर है कोई भी, ओके। सो ये प्रॉपर डेफिनेशन है लिमिट की, राइट, लिमिट के एग्जिस्टेंस की बेसिकली। तो हम थोड़ा इसको ग्राफिकली भी समझ सकते हैं कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे सपोज करो कोई फंक्शन है, ठीक है, लेट सपोज, हमने सपोज किया कोई भी फंक्शन है, राइट, ये फंक्शन ले लिया हमने, राइट। हमें नहीं पता इसका ग्राफ कैसा है बट ये कोई एक फंक्शन है और यहाँ पे इसका कोई पॉइंट है ए, राइट। तो उससे करस्पॉन्डिंग ये क्या हुआ, एफ ए, करेक्ट। कह रहे हैं इसका इसका मतलब क्या है, देखो ये मतलब है कि फॉर एवरी पॉजिटिव एप्सिलॉन, कोई भी आप पॉजिटिव एप्सिलॉन ले लो, कोई भी पॉजिटिव एप्सिलॉन, लाइक बहुत छोटा से छोटा पॉजिटिव एप्सिलॉन ले लो और नेबरहुड बनाओ अराउंड द एफ ए, इसके अराउंड। देखो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है,
इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो आपका एफ ए है वो बिलोंग करना चाहिए एल माइनस एप्सिलॉन टू एल प्लस एप्सिलॉन। अब अगर फंक्शन एफ ए, अगर ये एफ ए, हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा एफ ए एल पे कन्वर्ज कर रहा है, ये हमने माना हुआ है कि अगर कन्वर्ज कर रहा है, देखो एक फंक्शन के पास लिमिट है एट एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए पर हमें वैल्यू मिलती है करस्पॉन्डिंग टू एफ ए, और हम कह रहे हैं कि उस एफ ए के पास जो एफ है, एफ एक्स है, उसके पास लिमिट है ए पॉइंट पर। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स वो एल पे कन्वर्ज कर रहा है एट एक्स इज इक्वल टू ए। इस लाइन का मतलब है ये, ठीक है, ओके। तो अगर ये एल पे कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो रहा है सच दैट एफ ए माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, इसका मतलब अगर हम एफ ए के अराउंड एक नेबरहुड बनाएं, एप्सिलॉन लेंथ का एक नेबरहुड बनाएं जिसे हम एप्सिलॉन नेबरहुड बोलते हैं, राइट। आई होप यदि आपको अगर इसमें डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, सो दैट मैं इससे भी आपको क्लैरिफाई कर दूंगा। एप्सिलॉन नेबरहुड का अगर हम कोई भी यहाँ पे नेबरहुड बनाएं, एप्सिलॉन नेबरहुड बनाएं कोई भी, तो उसके करस्पॉन्डिंग ऐसा हमेशा ही, क्योंकि देखो अगर एप्सिलॉन नेबरहुड हमने बनाया है तो ये हमें अ, जो फंक्शन है उसका वैल्यूज मिल रहा है। अब इसके करस्पॉन्डिंग हम किसी भी पॉइंट पे वैल्यू देखें तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें उसकी प्री इमेज यहाँ पे दिखाई देगी। तो कह रहे हैं कि अगर हमने ऐसा कोई नेबरहुड बनाया है जो चाहे जितना भी छोटा हो सकता है, इतना छोटा ले लें, हो सकता है इतना छोटा ले लें, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक ए पॉइंट पर भी एक डेल्टा नेबरहुड का डेल्टा नेबरहुड एग्जिस्ट करना चाहिए ए पर। इसका मतलब कि अगर आपने एप्सिलॉन कुछ भी लिया है तो यहाँ पे एटलीस्ट एक डेल्टा रेडियस का एक नेबरहुड होना चाहिए एट द पॉइंट ए। ओके, सो ये तो रही डेफिनेशन, और हो सकता है आपको अभी भी समझ में आई हो, आई कैन एग्री विथ यू, ओके। बट हम छोड़ेंगे नहीं इसको, एक बहुत ही ज़्यादा प्यारे एग्जाम्पल से समझते हैं, इस जो ये डेफिनेशन है इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और बहुत अच्छे तरीके से इसको समझेंगे, इसके बाद आपका लिमिट का पूरा पूरा कॉन्सेप्ट तैयार होने वाला है, ठीक है। बाकी आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने ये नेबरहुड यहाँ एप्सिलॉन नेबरहुड जो लिया है ना, हम इसको इसीलिए यहाँ से ले रहे हैं बिकॉज हम देख रहे हैं कि कितने भी पास में जब हम फंक्शन को बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर रहे हैं तो क्या उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन के पास इनपुट वैल्यूज हैं। सपोज ऐसे, लाइक एक बहुत इजी एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमने ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन को ही समझ लेते हैं बाय द एप्सिलॉन डेफिनेशन, राइट। तो हमें किस पॉइंट पे चेक करना है, हमें किस पॉइंट पे चेक करना है, मान लो हमें चेक करना है चेक एट, क्योंकि पॉइंट होना चाहिए, अगर लिमिट हमें कॉन्सेप्ट पे बात करनी है तो हमारे पास एक पॉइंट होना चाहिए। सपोज हमने पॉइंट ले लिया एक्स इज इक्वल टू 5, तो हम जानते हैं आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, दिस इज द ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन, माफ करना ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, राइट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, राइट। तो यहाँ कहीं हमारा एक्स इज इक्वल टू 5 होगा, उसके करस्पॉन्डिंग हमें F5 मिलेगा, तो F5 यहाँ रहेगा हमारा, करेक्ट। ये हमारा 5 होगा, एक्स इज इक्वल टू, गॉट इट। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे F5, अब चूंकि हमें पता है कि F5 पे वैल्यू कितनी है, 5 ही है, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू एक्स है। तो हम कह रहे हैं कि हमारा फंक्शन एफ एक्स 5 पे टेंड कर रहा है एट एक्स इक्वल टू 5। तो ये कैसे प्रूफ करेंगे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से, इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये इन्होंने बोला था कि फॉर एवरी पॉजिटिव एप्सिलॉन, फॉर एवरी पॉजिटिव एप्सिलॉन, फॉर एवरी पॉजिटिव एप्सिलॉन, तो हमने कहा चलो एप्सिलॉन को कोई नंबर ले लो, क्योंकि है तो चूंकि पॉजिटिव ही, तो हमने कहा लेट
एप्सिलॉन इज इक्वल टू बहुत छोटा नंबर 0.01, ये ले लिया हमने, इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻², ये लिख सकते हैं, राइट, 10⁻²। और तो अब हम कह रहे हैं कि fx माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, ये हमें अगर हमने ऐसा किया है, चूंकि एप्सिलॉन को हमने फिक्स किया है, राइट, ये एप्सिलॉन हमारा यहाँ पे फिक्स है, तो ये फिक्स ही रहता है करस्पॉन्डिंग टू हर एक पॉइंट पे। तो एफ एक्स क्या है हमारा, चलो अभी एफ एक्स को, एफ एक्स माइनस एल लेस देन 0.01, करेक्ट। तो अगर हमने ऐसा कुछ लिया है तो एफ एक्स को रखो एल एक्स, और एफ एक्स एल, एल कितना है, एल मीन्स जहाँ एफ एक्स टेंड कर रहा है एट एक्स इज इक्वल टू 5 पे, तो वो 5 पे टेंड कर रहा है, तो ये हमारा एल का वैल्यू है, राइट। तो यहाँ पे 5 मॉड्यूलस लगाया लेस देन 0.01। अब हमारी डेफिनेशन क्या कह रही थी, डेफिनेशन कह रही थी कि जहां भी आपका फंक्शन टेंड कर रहा है, एफ एक्स टेंड कर रहा है एट एक्स इज इक्वल टू 5, एट एक्स इज इक्वल टू 5, एफ एक्स टेंडिंग टू 5, यानी कि जहां पे भी हमारा फंक्शन टेंड कर रहा है 5 पे, एक्स इज इक्वल टू 5 पे, उसके करस्पॉन्डिंग अगर हम कोई भी पॉजिटिव एप्सिलॉन लें, तो फिर इनपुट एक्स इज इक्वल टू 5 के अराउंड भी एक डेल्टा नेबरहुड मिल जाना चाहिए, जिससे हर एक एप्सिलॉन के लिए हमें एक डेल्टा हम दे पाए। तो यहाँ पे देखो ना क्या हुआ, एक्स एक्स माइनस 5, यहाँ पे हमें करस्पॉन्डिंग टू एक्स माइनस 5 मिल गया, जो मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 5 लेस देन 0.05 हो गया, राइट। तो ये हमें मिल गया। अगर हम कोई भी एप्सिलॉन ले लें, आप कोई भी छोटा से छोटा यहाँ पे एप्सिलॉन चेंज करोगे, उससे करस्पॉन्डिंग आपको एक डेल्टा नेबर, तो ये हमारा डेल्टा हो गया, डेल्टा कितना आ गया 0.0, तो हम चूज करेंगे एप्सिलॉन और मिलेगा डेल्टा, और अगर डेल्टा मिल रहा है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, यही डेफिनेशन ये कह रही है। आई होप थोड़ा सा आइडिया लगा होगा, मे बी पूरा आइडिया ना लगा हो, पर थोड़ा सा आइडिया आपको आई होप लगा होगा इसका। तो यहाँ पे एक चीज हम देख सकते हैं, डेल्टा हमें मिलता है क्योंकि हम एप्सिलॉन चूज करते हैं। तो कीवर्ड क्या है, लिमिट चेक करने के लिए, लिमिट चेक करने के लिए एप्सिलॉन हम चूज करते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग डेल्टा हम पाते हैं, राइट। और अगर ऐसा हमेशा हो रहा है तो एफ एक्स हैज लिमिट, अगर ऐसा हो रहा है तो फंक्शन के पास उस करस्पॉन्डिंग पॉइंट पर हमेशा ही लिमिट है, राइट। तो ये हो गया। अभी बहुत छोटा सा और एक एग्जांपल लेते हैं, मुझे लगता है आपको समझ नहीं आया पूरे तरीके से, तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहाँ पे फंक्शन आर से आर पे डिफाइन है, ये भी हमें पता होना चाहिए, राइट। पिछले वाले में हमने नहीं लिया था, वहाँ पे भी हम आर से आर नहीं ले रहे। तो इस ग्राफ कैसा दिखता है, ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, समथिंग लाइक दैट, ये। तो हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बात कर लेते हैं, कहाँ पे बात करें, चलो हमने कहा एक्स इज इक्वल टू, ये कहीं 1 होगा, ये कहीं 2 होगा, x is equal to 2, this is x is equal to 2, तो at x is equal to 2 function is taking what value is 2 to the power 4, it means function tending to 4 at x is equal to 2। इसका देखो क्या मतलब होता है, चूंकि फंक्शन 2 पे वैल्यू ले रहा है, ठीक है, फंक्शन 2 पे वैल्यू ले रहा है 4, बट बट हम फिर भी चेक करना चाहते हैं कि क्या फंक्शन हमारा जो एफ एक्स है, क्या वो सच में एक्स इज इक्वल टू 2 पर 4 पे टेंड कर रहा है,
4 पे टेंड कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एरिया बना लेते हैं अराउंड द लिमिट। कॉन्सेप्ट यही है। उसके बाद हम हर एक एप्सिलॉन नेबरहुड, जो एप्सिलॉन नेबरहुड हमने बनाया है एल पर, उसके अराउंड जितने भी पॉइंट्स से हम ये इंश्योर करते हैं कि क्या हर एक पॉइंट जो इस नेबरहुड में बिलोंग कर रहा है, क्या उसके लिए यहाँ पे हर एक डेल्टा मौजूद है या नहीं। अगर ऐसा होता है तो हम कह देते हैं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या लिमिट रख रहा है फंक्शन, अदरवाइज नहीं। राइट। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में एक एप्सिलॉन नेबरहुड जैसे हमने बनाया, मान लो इस बार का हमने बहुत छोटा एप्सिलॉन ले लिया, 0.0000001। ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 10⁻⁻6। करेक्ट, ये ले लिया हमने। तो हम बोल रहे हैं कि एफ एक्स माइनस एल, एल हमारा क्या है, 4 है, ये लेस देन एप्सिलॉन है। अब हमको पता है कि हमने एप्सिलॉन इतना छोटा लिया है, तो हमारे पास एक्स तो है, एफ एक्स तो है ही, एक्स स्क्वायर, एल भी है। एल कितना है, 4 है। ठीक है, एल हमारे पास 4 है। चलो एल, एल हमारे पास 4 है, हमने 4 रख दिया है। नोट टू नोट, एप्सिलॉन कितना है, 10⁻⁻6 है। ठीक है, ये एप्सिलॉन हो गया। अब देखो, हमें कंडीशन निकालनी है, क्या x इज इक्वल टू 2x, क्या इसके 2 के अराउंड भी कोई नेबरहुड है जो इस एप्सिलॉन को क्या कर रहा है, इस एप्सिलॉन नेबरहुड में डेल्टा दे रहा है। तो डेल्टा चेक करने के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4, यानी कि मैं लिख सकता हूँ, मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। ये मैंने कैसे लिखा, द फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस देन 10⁻⁻6। अब हम मॉड्यूलस प्रॉपर्टी से इसको बाहर निकाल सकते हैं। ओके, मल्टीप्लाई में है ये, लेस देन 10⁻⁻6। गॉट इट। ओके, नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, x माइनस 2, इस पार्ट को यहाँ भेज देते हैं, 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। ओके, तो अब भी एक चीज समझ पा रहे हो, हमें चाहिए था x माइनस 2 लेस देन डेल्टा। तो क्या ये एक डेल्टा होगा, क्योंकि आपको पता है मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 ऑलवेज पॉजिटिव, और ये हमेशा ही पॉजिटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहता है फॉर एवरी x। इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 2 हो जाता है तो नीचे 0 हो जाएगा, बट हम बात कर रहे हैं x इक्वल टू 2 पर, तो हम ये कह सकते हैं कि 2 के अराउंड, यहाँ पे कहीं जहाँ पे 2 है, इस 2 के अराउंड ये जो चीज़ है ये ऑलवेज नॉन जीरो है। मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 ऑलवेज नॉन जीरो है। इसका मतलब ये एक रियल नंबर है, और 10⁻⁻6 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 ये बहुत छोटा नंबर है। तो हमें मिल गया एक ऐसा डेल्टा जो x माइनस 2 लेस देन डेल्टा टाइप का दे रहा है, और इस केस में हमारा जो एप्सिलॉन था वो ये था, और जो डेल्टा आया है वो क्या आया, 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग डेफिनेशन है, बट आई होप ये दो एग्जाम्पल के बाद आपको क्लियर हुआ हो कि कैसे हम कर रहे हैं इस डेफिनेशन को। ये थोड़ा सा टिपिकल है, आपको हो सकता है समझना है, बट एक दो क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा इस पे। ओके, तो आपको ये समझ आ जाएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल आपको करने के लिए दे रहा हूँ, आपको इसको करना है, फिर हम और भी एग्जाम्पल में बात करेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आपको क्या करना है, एक एफ डिफाइन है रियल नंबर से रियल नंबर पे, और हम कह रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू मैं क्या दे रहा हूँ आपको, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 1, चेक एफ एक्स हैज लिमिट और नॉट। तो आपको एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लगा के ये एग्जाम्पल करना है। ठीक है, तो ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ।
अब हम एक बेसिक कुछ बात करते हैं, बेसिक लिमिट के ही कॉन्सेप्ट पे ही। तो अगर मैं आपको बोलूँ, जैसे मैंने आपको पीछे वाला एग्जांपल दिया है, ठीक है। अभी अगर मैं आपको कि जो फंक्शन है वो कुछ इस तरह से डिफाइन होता है और हम किसी पॉइंट पर करस्पॉन्डिंगली किसी पॉइंट पर हम लिमिट की बात करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पे जहाँ पे जो लिमिट होती है इसकी, राइट, इसके करस्पॉन्डिंग हम बनाते हैं एप्सिलॉन नेबरहुड। क्योंकि हम एप्सिलॉन नेबरहुड इसीलिए बनाते हैं कि हम आसपास के पॉइंट पे भी देखना चाहते हैं कि क्या बहुत ज़्यादा नज़दीक में, लिमिट के बहुत ज़्यादा नज़दीक में, क्या फंक्शन ऐसा तो नहीं है कि उसको करस्पॉन्डिंग फंक्शन कोई इनपुट वैल्यूज है ही नहीं। तो अगर ऐसा होता है तो हम उसको लिमिट बोल देते हैं। बट अगर मैं आपको बोलूँ ये एक फंक्शन है जो कि ए पॉइंट पे ही लिमिट रख रहा है, तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि हम एप्सिलॉन नेबरहुड डेफिनेशन लगाते हैं। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर मैं ये बोलूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये फंक्शन इस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है क्या, तो भी तो हम उस चीज़ को लिमिट बोलते हैं। जैसे, और एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन की भी यही कर रही है ना। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन यही काम कर रही है कि एक छोटा सा समूह बना रही है आसपास के एल लिमिट के नेबरहुड्स का, यानी उसके आसपास के सारे पॉइंट लेके हर एक एप्सिलॉन की डिमांड को हम चेक कर रहे हैं। तो सेम तरीके से हम चेक करते हैं अ, इस पॉइंट पे, जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर x a को टेंड करे, यानी कि x अगर इस चीज को टेंड करे, तो क्या हमारा एफ एक्स एल को टेंड कर रहा है। अगर ये भी हम चेक कर लें तो भी हम कह सकते हैं कि फंक्शन के पास लिमिट है। जैसे हमने बोला कि अगर x a को टेंड कर रहा है तो क्या हमारा एफ एक्स एल को टेंड कर रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो टेंड कराने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं। रियल लाइन में अगर हम एक पॉइंट लें एक्स इक्वल टू ए, तो हम या तो राइट से टेंड कर सकते हैं यहाँ पे, या लेफ्ट से टेंड कर सकते हैं। तो हमारे पास दो ही तरीके हैं इन द रियल लाइन। ओके, तो करस्पॉन्डिंगली हम इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट, दिस इज राइट हैंड लिमिट। जब हम राइट से टेंड कर रहे होते हैं, यानी इस तरफ से, यानी यहाँ से हम एक्स को टेंड कराते हैं एफ ए की ओर, और अगर हम यहाँ से टेंड करा रहे हैं तो उससे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जैसे मैं एक एग्जांपल से ही आपको समझा देता हूँ, बहुत इजी है ये। जैसे मैंने कहा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पुराना वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि एफ हैज लिमिट। देखो, वो जो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है काम वही कर रहा है, बट वो एक तरीके से लिमिट को चेक कर रहा है कि एट एक्स इज इक्वल टू टू फंक्शन के पास लिमिट है। बट ये जो है, ये आपको लिमिट दे भी देगा कि आपकी एफ एक्स इक्वल टू जो एल है, वहां पे एल दिया जा रहा था, हमें देना पड़ता था, तब वो चेक करता था। यहाँ पे हम एल निकालेंगे, राइट। जैसे एट एक्स इक्वल टू टू, एट एक्स इक्वल टू टू फंक्शन हैज लिमिट। तो वो लिमिट क्या है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा मान लो x टू को टेंड कर रहा है, अगर हम x को टू पर टेंड कराते हैं तो हमारा एफ एक्स कहाँ टेंड कर रहा है। तो हमारे पास दो तरीके हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एक राइट से। तो अगर हम राइट हैंड लिमिट देखें, राइट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट देखें, तो राइट हैंड लिमिट में हम क्या करते हैं, हम टू से थोड़ा सा आगे चेक करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टू पे ही चेक कर रहा हूँ, तो टू से थोड़ा सा आगे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टू प्लस एच। कोई मैंने एक पॉजिटिव नंबर ले लिया और टू प्लस एच में थोड़ा सा आगे चला गया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, लिमिट एच टेंडिंग टू टू प्लस, ये नोटेशन है कि मैं दो से आगे जा रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा एफ टू प्लस एच। और टू प्लस एच लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टू प्लस एच बाय द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। इसको मैं खोलूंगा, फोर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू एच। अब मैं बोलूंगा कि लिमिट, यहाँ पे मुझे लिमिट लिखनी चाहिए एच टेंडिंग टू जीरो, बिकॉज एच को जीरो जा, अगर एच जीरो जा रहा है, बिकॉज अब मैं यहाँ से यहाँ आ गया,
अब मैं बोल रहा हूँ ये मेरा फंक्शन था, कहाँ था, एक्स स्क्वायर, ये मेरा फंक्शन है। यहाँ पे सपोज करो, अच्छे से मुझे बनाना चाहिए इसको, ये मान लो मेरा फंक्शन है, ठीक है, यहाँ कहीं ये वैल्यू ले रहा है, तो ये 4 वैल्यू ले रहा है यहाँ पे, बट 2 प्लस एच पे कुछ वैल्यू क्या ले रहा है, ये ले रहा है 2 प्लस एच पे। तो अगर मैं एच को 0 टेंड कराऊं तो क्या ये 4 जा रहा है, तो यस ये 4 जा रहा है एज एच टेंडिंग टू 0। और सेम वे अगर मैं बात करूं लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से, अगर लेफ्ट हैंड साइड से मुझे बात करना है तो मुझे 2 से पीछे जाना पड़ेगा, लिमिट 2 माइनस, यानी यहाँ पे 2 माइनस एच, एच पॉजिटिव नंबर है तो बेसिकली हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो अगर इस पॉइंट पे हम बात करें तो एफ टू माइनस एच, ये मुझे 2 माइनस एच लेना पड़ेगा बाय द डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है फंक्शन की। तो यहाँ से अगर मैं खोलूंगा इसको तो ये मिलेगा मुझे ये। अब जैसे ही मैं एच को 0 टेंड कराता हूँ, ये कहाँ जा रहा है, 4 को जा रहा है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आर एच एल और एल एच एल बराबर आ जाते हैं तो एफ हैज लिमिट एल एट एक्स इज इक्वल टू ए। ये ये हो गया एक नया कॉन्सेप्ट। तो ये दो कॉन्सेप्ट आज हमने डिस्कस करी इस वीडियो में। आई होप ये हो सकता है आपको लास्ट का एग्जांपल ना समझ आया हो, इसके लिए मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, आप करिएगा और कमेंट में उसका आंसर भी बताइएगा। सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 एट एक्स इज इक्वल टू 5। इस पे आप एल एच आर आर एच एल चेक करिए और मुझे एल एच एल भी बताइए, आर एच एल भी बताइए, और क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ये भी बताइए। ठीक है, तो दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं और इसमें हमने एल एच एल आर एच एल से इसको सॉल्व किया है, तो आप इसको एल एच एल आर एच एल से बताइए। और इसके पहले हमने जो बात की थी, इसके पहले हम जो बात कर रहे थे यहाँ पे, इस क्वेश्चन को भी आप करिए एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से, इसको भी बताइए। तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन भी हमने बात करी। अगर आप कोई भी डाउट इसके अंदर है आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अगले वाले वीडियो में हम क्या बात करेंगे, अगले वाले वीडियो में हम बात करेंगे एल एच एल आर एच एल पे कुछ प्रॉब्लम लगाएंगे जो आपके एग्जाम में आते रहते हैं। और अभी हम बहुत बेसिक बात कर रहे थे अभी हम आगे बात करेंगे और ज़्यादा एडवांस जाएंगे, सो दैट आपको अपने एग्जाम में हेल्प मिले और आप बेहतर तरीके से समझ लें। तो वो ये मेरा एक छोटा सा इनिशिएटिव है आप लोगों के साथ कनेक्ट रहने का और ऐसे ही वीडियो आप लोगों के साथ साझा करने का। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो कंटिन्यूसली देखते रहें, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट अपकमिंग वीडियोस आपको सबसे पहले मिलेंगे, सही डेट पे आपको मिलेंगे, राइट, अपडेटेड आप रहेंगे मेरे साथ। और मोस्टली मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी ही आपके लिए वीडियो लेके आऊँ जिसमें हम एल एच एल पे बात, एल एच एल आर एच एल में और डिटेल्स में काफ़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे कराएंगे। और इसके बाद हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे लिमिट की, जो बहुत ज़्यादा काम आपको आएंगी आपके एग्जाम में, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिन पे हम बात करेंगे। देन उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्वांटिटी पे भी थोड़ा सा बात कर पाएंगे। So thank you so much. Bye bye. Take care.